इस बुलाने का मतलब ये था, इनफैक्ट वी हैड रिसीव्ड इन्विटेशन फ्रॉम आवर association that the team has performed so well, and all the senior cricketers who have been associated with J&K, they should come and celebrate the day. That is the main objective of, and providing a chance to the journalists so that they can interact with us and get a feedback from. That is the main objective of the press conference. सर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही हमारी टीम की इस बार। एक लीड जो रह गई, सिर्फ अब उसे बदकिस्मती ही इसे ताबीर कर सकते हैं हम। क्या समझते हैं, अगर उमरान मलिक और रासिक होते तो शायद ये लीड भी हमारे हक में जाती? देखिए, मैंने पहले ही अपने स्टेटमेंट में कहा कि these things have always happened and will continue to happen. If you remember, there are teams who scored. I remember a test match where teams scored 580 in the first inning, and then towards the end they had to score 100 in the last inning to win the match. They lost the test match. Where we feel really sorry that such a thing happened, but these will continue to happen. If you remember, there's a last inning wicket. I remember there was a match between Pakistan and New Zealand where last wicket Bob Cunis and Brian Hastings, they scored something around 160 runs for the last. I'm not very sure about the number, but this happened and they lost the match. So we should maybe there have been lapses here and there. We could improve in catching and fielding. That's how we expect things to go in a सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो खुशी का मौका है जी। तो ये बताइए कि कौन सी चेंजेस हुई, जैसा कि आप कहते हैं कि एक ख्वाब सा बना हुआ था किसी टीम के साथ जीतना, किन चेंजेस पर अपनी ये फतह अब हासिल हुई? चेंजेस क्या हुई? मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं अपनी बात, हाउ आई लुक एट cricket on the basis of my association with cricket. There was a time when we had to motivate people to play cricket. Aaj the basic difference is people have started taking it as a profession. You find parents coming with kids to the stadium and spending almost 5 to 6 hours with them every day. I remember we used to skip our schools and see that, make sure that our parents don't see us going to cricket field. That is the main difference. That's the main difference now and then. Sir, this is Sarosh from Network 18. My question is that, not that I'm being cynical about it, because I'm a cricket aficionado, so I want to understand. Association has been plagued with so many controversies. We are unable to generate world-class cricket players across Jammu and Kashmir, barring a few. जिसपे हम लोग we are riding on. Recently, Akib is there and Rasik and all. But then why aren't they sustaining in international cricket matches? Like we see people predominantly from Maharashtra, Punjab, and Delhi clubs. So why aren't we able to produce such? I am so happy you have a question that touched my heart. I am reminded of a match that जब मैंने पहले बात की वेस्ट इंडीज और इंडिया के मैच की. I had the privilege of being, आप मेरे को पता नहीं, आप समझते होंगे ये कोई छोटा आदमी है एज के हिसाब से. I am 74 years old, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. I was in charge of the ground with Pajnu Saab as my convener and Mr. Koyum as the grounds committee का member थे हम. We prepared this wicket for West Indies and Indian match. मैं बिल्कुल वसूख के साथ कहता हूँ कि तब जाके जब ये स्टेडियम 10-20 हमारे जो यहाँ ऑफिस बेयरर्स थे, they were very, very influential people in the sense they were close to the higher ups in the association. They would get most of the things done on their professional lives, not because there was no money available, and with very, very meager resources we managed to conduct 3 one-day matches. I think this is the tragedy that this place, which is a priceless piece of land for all of us, and I must salute all those people who have created this infrastructure for us. I tell you, the biggest contribution of our seniors is that they may not have paid us a lot of money by way of match money, but ये सबसे बड़ा हमारे लिए गिफ्ट ये है, और सबसे बड़ी खदमत होगी एसोसिएशन की. इस एसोसिएशन की सबसे बड़ी खदमत होगी अगर इस स्टेडियम को ये ठीक कर सकते हैं. और साथ ही साथ हमने जम्मू में भी एक आलिशान स्टेडियम होना चाहिए. नॉट ओनली प्रोविंशियल हेड स्टेडियम्स, हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में टर्फ विकेट्स होने चाहिए. दैट्स हाउ वी कैन सस्टेन दिस एंड हैव. आप देखिए कि आपके क्वालिटी में कोई परेशानी नहीं है. लुक एट आकिब,
उससे perhaps 5 wicket falls away. He is knocking at the doors of India, but we need to sustain and enhance his potential by providing facilities, by providing infrastructure and competitive cricket. Not only infrastructure. It's not only infrastructure that has helped people to grow. It is only the competitive cricket and your drive for the association, drive of the association will matter. मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अब थोड़ा सा मैं अपनी बात कहूँगा कि हम क्रिकेटर जो यहाँ सारे बैठे हैं, चाहे मेरे से छोटे हैं, बहुत सारे छोटे हैं, मगर मुझसे ज़्यादा अच्छे क्रिकेटर रहे हैं. I've had the privilege of playing with परवेज अशरफ साहब मुझे याद है. He was one of the smartest cricketer जो हमारे थे. और परवेज साहब, इनकी तो बात ही नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे याद है अशरफ साहब played for Indian schools. Ashraf Saab played for Indian schools. You see Shubham Khajuria. He was the first person to represent India and we were at the helm of affairs that time. But he kept his game on. Whatever little facilities were given to them, they took maximum advantage of that. मैं कहता हूँ my hats off to these players. With very little cricket that we have been able to give, they have reached this stage. अगर हम थोड़ा सा वो efforts करेंगे, which I am sure, अगर if cricketers manage this, मुझे नजर आता है इंशाल्लाह कि हमारी टीमें और आगे जाएंगी. भी और आप लोग भी गेम में इंटरेस्टेड हैं. जहाँ तक हमारी रणजी का सवाल है इस साल का या बाकी हिस्ट्री का जो कहेंगे 59 से चलती आई है, एक तवील सफ़र है जो इस टीम ने किया है. इस टीम ने मालगाड़ियों में भी सफ़र किया है. इस टीम ने उस बाल्टी में भी पानी पिया है जिससे पिच पे पानी डालते थे. इस टीम ने तवी को भी बाथरूम बनाया है जम्मू में. और आज ये टीम अगर 5 स्टार होटल में रहती है, अच्छा ट्रैवल करती है और अच्छी परफॉर्मेंस देती है, तो हम सब बहुत खुश हैं. खुशी ज़्यादा यह होती कि जो मैंने पहले भी एक दफ़ा किसी डीडी पे कहा था कि मेरा अपना ख्याल था कि इस साल जे.एंड.के रणजी जीतेगा. मैं पूरा श्योर था कि जे.एंड.के रणजी जीतेगा इस साल. मगर बदकिस्मती गेम ऐसी है, इसमें पता नहीं चलता है कब क्या हो जाए, तो हम रणजी नहीं जीत सके. मगर 2 चीज़ें मुझे इस टीम की और इस मैनेजमेंट की या सपोर्ट स्टाफ की बहुत अच्छी लगी इस साल. सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारी टीम ने जीत में भी डिग्निटी दिखाई और हार में भी ग्रेस दिखाई. जब जीते, जब हमारे उमर नज़ीर ने रोहित शर्मा का विकेट लिया, उसने हवा में मुक्के नहीं चलाए, नाचा नहीं, गालियाँ नहीं दी, ज़मीन को मुक्के नहीं मारे, बड़ी डिग्निटी से उसने एक बड़े प्लेयर को आउट किया था, बड़ी डिग्निटी से उसने बिहेव किया. जब हमने मैच जीता बॉम्बे के साथ, हमारी टीम ने भांगड़ा नहीं की, हवा में जंपे नहीं मारी, बड़ी डिग्निटी से उन्होंने जीता. बड़ी डिग्निटी से वो ग्राउंड से बाहर निकले. खुशी उनके मुंह पे नज़र आती थी, मगर जो ग्रेस और डिग्निटी उन्होंने दिखाई बहुत अच्छी थी. उसके बाद अब जब केरला के साथ एक हार्ट ब्रेक हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई सब प्लेयरों को, हम देखने वालों को हुई, जो वहाँ खेल रहे थे तो उनका क्या हाल होगा. उसके बाद भी उनने अपनी डिग्निटी और ग्रेस मेंटेन की. ये दिखाती है कि जो हमारी टीम है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनका माइंडसेट कितना अच्छा है. वो गेम को किस तरीके से ले रहे हैं, वो गेम को किस तरीके से खेलना चाहते हैं. साथ में जो सपोर्ट स्टाफ हमारा इसके साथ होता है, टीम के साथ होता है, या आज अगर 14 प्लेयर खेलते हैं तो 20 बाहर होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं. सपोर्ट स्टाफ का भी अच्छा रोल रहा होगा, तभी टीम ने इतना अच्छा खेला. जो मैनेजमेंट थी, जैसे बॉम्बे के मैच से मैंने सुना कि टीम 10 दिन पहले बॉम्बे पहुंची थी, इसलिए पहुंची थी कि वहाँ के वेदर से, वहाँ जो ह्यूमिडिटी है उसमें बैठ के थोड़ा अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, फिर मैच खेलने उतरेगी. ये सारी चीज़ें देखिए, मैच का रिज़ल्ट जो होता है वो तो किसी के हक में जाएगा, मगर देखना आपने यह है कि जो खेलने की जर्नी है, कि हमारी टीम ने जो सफ़र किया वो कैसे किया. हमारी टीम ने बड़ी डिग्निटी से सफ़र किया. मैं उनको उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ कि आपने हार में भी अपनी ग्रेस और डिग्निटी नहीं खोई, आपने जीत के भी अपनी डिग्निटी नहीं खोई, आपने जीत के भी वो भांगड़े नहीं किए. इस चीज़ की मैं मुबारक अपनी टीम को देता हूँ. दूसरा ये मैं कहता हूँ कि जो हमारी मैनेजमेंट ने एक अच्छे तरीके से टीम को हैंडल किया.
शिकायतें सबको होती हैं, यहाँ भी बहुत सारों को शिकायतें होंगी, मैनेजमेंट से, टीम से, सिलेक्शन से, बाकी सारी चीज़ें। ये कहानी होती, अल्टीमेटली 11 प्लेयरों ने खेलना है। आपके पास तो ऐसा तो नहीं है कि आपके पास सिर्फ 11 ही प्लेयर होंगे, खेलने वाले 33 प्लेयर होंगे जो 11 में खेल सकते हैं, मगर आपको टीम खिलानी है, आपको इंडिविजुअल्स नहीं खिलाने। बड़े बड़े नेशंस जिनके पास इंडिविजुअल टैलेंट बहुत अच्छा है, एज अ टीम क्लिक क्यों नहीं करते? क्योंकि वो टीम नहीं खिलाते, वो इंडिविजुअल्स खिलाते। जैसे इनने हमारे टॉप प्लेयर्स, जैसे समद को मैच में नहीं खिलाया, टीम को नहीं लगा होगा खेलेगा, उसकी पोजीशन है, तो उनने नहीं खिलाया उसको। ये बोल्ड डिसीजंस लिए। ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे लगता है कि हमारी टीम ने और हमारी मैनेजमेंट और हमारी थिंकिंग ने एक वो कॉर्नर टर्न किया है। हम उस कॉर्नर के आगे निकल गए जिसके आगे हमको नज़र नहीं आता था। अब हमको नज़र आ रहा है कि आगे हमारा रास्ता क्या है। अब हमको ये दिख रहा है कि जो 1982-83 में 24 साल के बाद J&K ने पहला मैच जीता, वो सफ़र वहाँ से शुरू होके आज कहाँ तक पहुँच गया। बॉम्बे से 2 मैच खेले, दोनों मैच बॉम्बे को हराए, और वो भी उनके अपने घर में जाके। एक बार हराने वाले में तो समीउल्लाह भी शायद थे, वहाँ माजिद भी था, समीउल्लाह भी माजिद भी थे। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ जो हमारी लोकल मैनेजमेंट है JKCA की, उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उनने ये मौका दिया हमको आपसे बात करने का, अपने ख़यालात ज़ाहिर करने का। जो हम वैसे सोशल मीडिया पे तो अपनी स्टीम निकालते ही रहते, मगर आपके सामने बात करने का मौका मिला, इसके लिए मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ यहाँ हम अशरफ साहब हैं जो हमारे सीनियर हैं, जिनके साथ मैंने यूनिवर्सिटी से खेलना स्टार्ट किया था। ये मेरे पहले कैप्टन थे इंटर यूनिवर्सिटी में भी। अब ये अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अच्छा, ये कहते हैं मैं कुछ नहीं कहूँगा तो माजिद, अच्छा सवाल।